Okay, so yesterday we had a talk elaborately about whether things are destined or not. एक छोटा सा पार्ट जो रह गया था उसमें about this thing about exactly knows that what all things are going to do in future. This thing will be getting answered in this particular article. This is a conversation between Prabhupada and some of his disciples. But then Prabhupada also asked something in line with that. So we'll get answer to this question. Basically, we want to know, just for example, like now, does Krishna exactly know that what all things are going to do in future? Is what all of you think about it. One को कैसे पता है? Yes? Sure? Suppose match is a match already fixed. Match is in your life. No. कितने लोग बोलते हैं I guess sir. Exactly पता है exactly क्या काम करने वाला है हमें. एक दो तीन चार पाँच छह ठीक है ओके और कौन लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंटली कि नहीं हमको एग्जैक्टली नहीं पता आगे क्या तो मे बी जो लोग बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली हाँ हमको पता है सब कुछ would you like to give some arguments how can you say that why do you do that engineer what is how just like just a second. Dash को reduce the volume of that. Ask the volume. Yes, okay, fine. So you are telling that because Krishna is the manufacturer of this world, that's why he should be knowing everything. Okay, Abhishek को बहुत से जानते हैं. हाँ, Karthik को also. भगवान त्रिकालदर्शी है भगवान को सब कुछ पता होना चाहिए आगे क्या क्या होने वाला है आगे पे कितने पॉइंटर आने वाले हैं कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट होने वाला है ओके ब्राह्मण ब्राह्मण मार करवा रहे थे
ये देखा लेकिन तो सब कुछ पता होना चाहिए उनको ओके चलो बोल रहे थे कि और कोई इम्पोर्टेंट पार्ट भगवान को ऐसे भगवान को सब कुछ पता हो सकता है लास्ट पार्ट को because Lord knows everything so he will know exactly क्या करना है so those of you who are telling that no God does not know what is going to happen with us can you इसीलिए कि उल्टे के लिए भगवान को नहीं पता है उसके लिए पता है ओके और कोई प्रॉब्लम नहीं समझ सकते कि आगे क्या बोल now those of you कौन कौन से लोग बोले भगवान को नहीं पता है एक दो तीन okay yeah you have some arguments to put why do you believe that it's on you know good point कोई argument शेयर करना कुछ के अलावा रीजन हमारे लीगल भी है इसके हिसाब से जो हम करेंगे ये हमारा आगे के लिए हो बोल रहे हैं हमारे को जाना चाहिए लेकिन हमारे चलो ठीक है चलो इसके कृपा जी हमारे कामों को समझते हैं सुन दिया ठीक है इसको पढ़ के बहुत क्लियर हो जाएगा ना अच्छा वेरी हैप्पी टू सी आप लोग प्लेटफॉर्म लोगों इसको ध्यान से पढ़ेंगे ओके I can read the first part क्या हुआ है Rameshwar Swami his topics and asked about independence. He told Shivagopal that Karandhar Das, an ex-DBT trustee and the president of the Los Angeles Temple, has had many confusions and doubts about our philosophy since falling victim to the sensual allurement several years ago. These center on what the actual nature of our relationship with Krishna is. According to Karandhar, if Krishna is all-knowing, he therefore would know that we are going to misuse our independence and fall from the path of devotional service. If he knows that, why doesn't he stop us? Rameshwar paraphrased Karandhar's doubt. Krishna knows that I will misuse my independence, but still he gives me independence. Just a second. ठीक है तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जो कि लॉस एंजलिस टेंपल के वहां पे प्रेसिडेंट बनाया था उनको ठीक है ना बट देन he was practicing Krishna consciousness but then he came across some doubts जो कि वो समझ में नहीं आ रहा उसके बाद में उनका डाउट क्या था दिस वाज हिज डाउट इफ कृष्णा इज ऑल नोइंग तो सिर्फ उन्होंने क्या किया he had some doubts and he started falling into the sensual allurements मतलब क्या again he started doing some sense gratification some wrong things he started indulging into the wrong things okay and then what was his doubt he was telling that if Krishna is all knowing he therefore will know that we are going to misuse our independence
and fall down from the path of devotional service. अगर भगवान को सब कुछ पता है तो उन्हें पता होगा कि कैसे हम मिसयूज करने वाले हैं हमारा फ्री विल, तो फिर भगवान हमको स्टॉप क्यों नहीं करते हैं, राइट? ये उन्होंने क्वेश्चन, ये उसके माइंड में डाउट था, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आया। तो ये क्वेश्चन को भगवान को पूछ रहे हैं, दूसरे डिसाइपल में होगा रामेश्वर को, वो पूछ रहे प्रभुपाद से, राइट? Krishna knows that I will misuse my independence, but still he gives me independence. Okay, so now Prabhupada is going to say something. Okay, so we need to have a devotee who has clear voice to speak proper. Nitish को आप Prabhupada ज़्यादा पढ़ सकते हो ना? And second is about Rameshwar. Maybe you can speak. Good. I think you can read back. No, I think I said well, let's say the answer is just a second. So, that is Krishna's mercy. Prabhupada agreed. Okay. Yeah, just a second. System, huh? Even though it is bad, हो रहा है, जा रहा है? हाँ. even though it is bad for me, Rameshwara continued. He knows everything in the past and everything in the future. Krishna is all knowing. Srila Prabhupada explained what it means to know the past, present, and future. This future means just like a father knows how the child is. Now, if the child changes and touches the fire, Krishna knows it will burn. He knew when the child did not touch the fire, his future. And when he touched the fire, Krishna knew the result. So he always knows. His position is to know the future. He always knows now you're changing. What is the future due to your little independence? just a second, right? तो पहला चीज क्या बताया उन्होंने प्रभुपाद ने, देखो पहले उन्होंने पूछा कि फिर अगर कृष्णा को पता है कि हम अपना फ्री विल मिसयूज करने वाले हैं, then why Krishna allows us? So Prabhupada told that is Krishna's mercy. वो भी भगवान की मर्जी है, क्यों मर्जी है आगे समझ में आएगा, ओके, राइट ना? एंड देन ही इज आस्किंग कि but he knows that he knows about everything in the past and everything in the future. Krishna is all knowing. तो प्रभुपाद अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं that what is the meaning of that what is the meaning that Krishna knows everything of the past and the future. उसका exact meaning क्या है? So उसका exact meaning क्या है? You see, the example is given of the father, right? देखो क्या example दे रखा है यहाँ पे. This future means just like a father knows how the child is. Now, if the child changes and touches the fire, Krishna knows it will burn. He knew when the child did not touch the fire, his future. And when he touched the fire, Krishna knew the result. So he always knows. His position is to know the future. He always knows now you are changing. What is the future due to your little independence, right? So main point क्या है? Krishna knows in the sense what? Just like a father is there now. Can a father know about the future of the child? He knows in one way. How he knows? If the child is going to properly, properly take advantage of the education, he's going to get proper, he's going to remain obedient and he's going to remain hardworking, then he will be able to have a good future. And if he will misuse his freedom, if he will be disobedient, if he will not study properly, then he will have bad future, right? So in both the cases, you see ultimately किस पे depend कर रहा है? बच्चे की free will पे depend कर रहा है, right? And the father knows the future of the son in what way? That if he will choose this path, then he will have this set of things. If he will choose this path, then he will have this set of things, right? यही main crux है. Same way, Krishna also knows everything about the future in what sense? That how if we will choose this path, then what is going to happen to us, and if we will choose that path, then what is going to happen to us, right? Correct, now? Because in this case, the free will is with whom? Krishna, or our free will is with whom? Krishna or with us? And that makes sense, right? Now the free will has to be our free will, मतलब कि स्वेच्छा, अपनी इच्छा, right? If you can say that Krishna knows exactly कि आप आगे क्या क्या करने वाले हो, आप कौन सा चॉइस लेने वाले हो, right? तो फिर हमारा इच्छा का तो फिर कुछ रहे ही नहीं, right ना? Correct or not, right? So ये main concept है. सुनना आप लोगों को point. Krishna knows the future in the sense that what is going to happen to us if we will take this path or that path in that way, right? But Krishna cannot say for surety that whether we are surely going to, like Krishna was not knowing कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आएंगे पक्का नहीं. हमने उस समय डिसीजन लिया, हमने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया, इसलिए फिर कृष्णा को अरेंजमेंट करना पड़ा हमें यहाँ पे आने के लिए, राइट ना? यू कैन नॉट से दैट कृष्णा इज रिस्पांसिबल. कृष्णा वाज नोइंग एवरीथिंग. उनको पता था कि आगे चल के 2021 जब रहेगा मटेरियल वर्ल्ड में, तब हम लोग उस समय है ना इस मटेरियल वर्ल्ड में आने की इच्छा रखेंगे. कृष्णा डिड न्यू इन दैट वे. सुनना आप लोगों को थोड़ा और पढ़ेंगे तो और क्लियरली प्रॉपर कुछ एग्जांपल से समझा देंगे इसको ना. ठीक है, गो अहेड. So, can you actually say that Krishna knows you will misuse your independence? He knows if you misuse your independence, what will happen. But can it be actually said
that he knows you will definitely misuse. See, this Pushta Krishna is asking to Prabhupada. So उन्होंने पूछ लिया, does Krishna exactly know कि हम लोग misuse करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, right? Now what Prabhupada is saying? Yes, yes, Prabhupada confirmed. Hmm. Pushta Krishna nodded. Also, you can use your independence properly. It is up to you. Yes. But then that limits Krishna, Rameshwara challenged. If you say that Krishna did not know when I'll misuse my independence, or if I will, Wait, हाँ. अभी बहुत important point यहाँ पे छिड़ गया है. समझ आ गया छिड़ गया है? See, if you say, see, so we discussed it how Krishna does not know exactly कि हम लोग क्या choice लेने वाले हैं, right ना? So now Rameshwar is asking कि but अगर ऐसा हम बोलते कि भगवान को नहीं पता है कि हम कौन सा choice लेने वाले हैं आगे, इसका मतलब then it's a limitation upon Krishna. See, Krishna should be all knowing, correct or not, right? So then if you say that, oh, Krishna does not know that what choice you're going to make, then are we not limiting Krishna? Just like we have given another example, na? Like people say that, okay, Bhagwan Murti mein nahi aa sakte. See, if you say like this, then you're limiting Krishna, na? Why Krishna cannot come in the Murti? You know, Krishna, everything is Krishna's energy. तो वैसे वो पूछ रहे हैं कि अगर आप बोलते हैं कि भगवान हमारे चॉइस को नहीं जानते हैं कि हम क्या चॉइस करने वाले, तो फिर इसका मतलब है भगवान पे लिमिटेशन आ गया, करेक्ट? सो नाउ प्रभुपाद इज गोइंग टू से अबाउट इट. ऑल ऑफ अस आर टुगेदर ना. किसको कंफ्यूजन तो पूछ लेना ना ताकि समझना है हमको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट है ना. गो अहेड. no. That means you do not know what is the independence. Prabhupada Katan. You can change your position at any time. That is your independence. Yeah, so this is the main point Prabhupada is saying that. See, it doesn't mean that we are limiting Krishna by saying this way. See, Krishna has already given us a freedom right now, and Krishna has given us independence. So independence का मतलब भी तो ये होता है ना कि किसी भी समय आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हो. That is the meaning of independence, right? Okay, go ahead. But does not. But does not Krishna know if I'll do it? Rameshwara asked. Yes, because you're independent, Prabhupada told him. That is the meaning. Wait, right? So yes, Krishna does not know. See, does Krishna know that whether we are going to misuse our free will or not? No, Krishna does not know it. That is what Prabhupada is confirming. Right? But doesn't Krishna know if I will do it? Yes, because you are independent. That is the meaning. So that is the meaning of free will. ना free will देने का मतलब ये है कि भगवान ने हम पे छोड़ रखा है कि हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं, राइट? अगर भगवान हमें हमारे डिसीजंस भी भगवान ही लेते हैं तो then we would have no more have free will, right? We would have been simply robots. रोबोट को बोला यहाँ चलना है, यहाँ चलना है, ये चॉइस लेना है, वो चॉइस लेना है, right? But Krishna has not designed us in this particular way, right? This is the point. Okay, go ahead. Rameshwara nodded to show he understood. Marginal. Prabhupada went further, and the result he knows. Just as a lawyer knows that he has done this criminal, he'll be punished like this. So his position to know the future is always there, either in this condition or other condition. He gave a practical example which made us all smile. Why just Krishna? Everyone knows. Suppose you have got this body, next body is a dog. I can say you'll bark. This is Karandhara's problem. Okay, just a second. So यहाँ पे क्या बताएं? Prabhupada example दे रहे, right? ना? How Krishna knows, in what sense Krishna knows everything? वो Prabhupada example दे रहे, right? For example, suppose somebody has got a body of a dog, then you can always say that yeah, he's going to bark. समझे आपको? वैसे ही अगर हम लोग अपना मिसयूज करेंगे फ्री विल, तो हमारे क्या डेस्टिनी होगी वो भगवान बता सकते हैं, right? It is predictable, right? To give another example, like let us say, like all of you have come for engineering now. Now in this 4 years, you have a freedom. How you are going to use this for 4 years, right? Now, one of the ways is you don't study in these 4 years. Now you get backlogs. You don't pass the examinations. Then what is going to be your future? You will have no opportunities for earning and all, right? You will have a bad future, right? And if you use properly, then you will be able to have a good future, right? So anyone can predict, na? I can predict that. Okay, I can predict your future. What is your future? See, if you will properly utilize these 4 years, then you will be able to have a better opportunities. If you misuse it, then you will be able to. So in that way, I know about your future. In that way, I know about your future. But ultimately, that future is in whose hand? In your hand only. In that way, Krishna knows about everything about the future. But Krishna does not know exactly that which choice we are going to make. So may I have a point? Otherwise, the concept of free will get failed. Yes. फिर फ्री विल नहीं रहेगी ना. आप सोचो तो सही, मतलब आप प्रैक्टिकल सोच के देखो. अगर सब कुछ ऑलरेडी, जैसे मैच फिक्स्ड है, मान लो मैच फिक्सिंग होता है ना, ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इंडिया जीतेगी पाकिस्तान हारेगा, राइट? उल्टा भी हो सकता है बट मान लेते हैं, राइट ना? तो फिर अभी कोई चांस रहा क्या? ऑलरेडी फिक्स हो गया कि कुछ भी कर ले पाकिस्तान बट इंडिया जीतने वाली है, राइट? तब तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना. कुछ गेम में मजा आएगा क्या, बताओ? गेम में आपको पता है कि इंडिया ही जीतने वाली है,
भले ही पाकिस्तान से भले वो कितने ही बॉलर ने अपने रंग दिखा दिए, भले ही कितना बल्लेबाज ने मार दिया, बट आपको पता है इंडिया जीतने वाली, राइट? तो कुछ मजा है क्या उस गेम में? नहीं ना। ऑफ कोर्स मजे के लिए भगवान नहीं करते हैं, बट पॉइंट है कि ऐसा अगर आप बोलते हो कि कृष्णा को पता होना चाहिए कि हम आगे क्या क्या, क्या करने वाले, देन फिर हमारे फ्री विल का तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा। नहीं, यही तो मेन पॉइंट है, यहीं पे ही समझा। क्योंकि से देखो क्यों ऐसा किया भगवान ने। कृष्णा इज स्वराट, कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, भगवान पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ठीक है? और हम भी भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ, द ओशन ड्रॉप एंड द ओशन, राइट? सो क्योंकि हम भी भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, तो इसलिए जैसे भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट, तो भगवान ने हमको भी इंडिपेंडेंट बनाया है, विच मीन्स व्हाट वी कैन चूज, we can choose the either way, either we can choose to serve Krishna or we can deny to choose the Krishna, right? तो वो इंडिपेंडेंस भगवान ने हमको दे रखा है, तो इसलिए भगवान उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? राइट, भगवान भगवान ये जानते हैं कि ठीक है, अगर हम मिसयूज करेंगे तो क्या होगा, अगर सही यूज करेंगे तो क्या होगा, राइट? लाइक पेरेंट्स आर देयर, parents also know about your future. How they know about your future? In that sense, right? If you will be a good son, then what will happen to you? If you will be a bad son, then what will happen to you, right? In that way Krishna knows about future, right? Otherwise then there is no concept of free will, otherwise अगर फिर तो सब कुछ फिक्स ही हो गया ना, इट्स लाइक अ रोबोट हो जाएगा फिर तो भगवान ऐसा नहीं बना रखा, राइट? यस, यू हैव सम क्वेश्चन? हाँ, हो गया आंसर? ओके। अच्छा एक मिनट, इस आर्टिकल में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक आपके जो क्वेश्चंस कुछ और भी माइंड में आ रहे हैं वो सब इसमें आंसर हो जाएंगे मोस्टली, ओके? और नहीं होंगे तो फिर फर्दर हम करेंगे, राइट? ओके, सो ऑल ऑफ अस आर हियर टुगेदर, सो दिस इज नाउ गो अहेड। This is Karandara's problem, this point of philosophy. He cannot understand it. सो करंदर का क्या प्रॉब्लम था? If Krishna knows everything, then he knows that we are going to misuse our free will in future. Then why Krishna gives us the free will? ये उसका डाउट था, राइट? तो पापा यही बता रहे हैं कि देखो, भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दिया है। इंडिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि भगवान हम पे छोड़ दिए हैं कि हम कैसे यूज करने वाले हैं, गेटिंग ना? अगर वो इंडिपेंडेंस नहीं दिया होता तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता उसका, राइट ना? तो करंदर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग कि अरे इट्स इनटू माय हैंड, आई एम रिस्पांसिबल फॉर मिसयूजिंग माय फ्री विल, इट्स नॉट कृष्णास डिजायर दैट लाइक फॉर एग्जांपल like suppose somebody goes and start intoxication, कैन यू से दैट भगवान की ऐसी इच्छा है इसलिए मैं पीना स्टार्ट कर दिया हूँ? अरे तुम्हारी इच्छा है भाई, भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं गीता में, नो ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, बोल रहे हैं ना भगवान तो। कई लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा जब होगी तब हम आएंगे, राइट? कई लोग को स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा भक्ति वक्ति करो। बोला जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब हम आएंगे, राइट? ठाकुर जी तो बुला रहे हैं, आप आओ, गीता खोलो, भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ मेरे पास आओ, भगवान बोल रहे हैं शास्त्रों में, राइट? गुरु साधु शास्त्र सब बोल रहे हैं कि आओ भक्ति करने को, राइट ना? नहीं नहीं, भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे। ठीक है भैया, तुम्हारे भगवान की इच्छा पे वेट करो। ऐसा किसी दूसरी चीज के लिए नहीं करते हैं हम, राइट ना? बाकी सब जगहों पे हम खुद ही एफर्ट लगाते हैं, राइट? आप नहीं होते कि भगवान की इच्छा होगी तब इंजीनियरिंग डिग्री मुझे मिल जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तब मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, राइट ना? उसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, करेक्ट? तो वैसे ही अगर हमको भगवान से भी कनेक्शन करना है तो उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके? ओके, गो अहेड, लेट अस गो अहेड। Rameshwara told Srila Prabhupada. His argument is that he's having so much trouble due to his sense attraction. And Krishna gave him the sense attraction, or Krishna gave him senses. Now he's having trouble controlling his senses. But he argues that Krishna knows everything. So he knew. So he knew that he would have trouble controlling his senses. Therefore, why did Krishna give him senses? That is nonsense, Prabhupada said, shaking his head. Rameshwara brought in another angle, a part of what. वेट वेट, राइट? समझ में आपको क्या बोल रहा है करंदर? अरे मुझे सेंस अट्रैक्शन हो रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जाने का मेरा मन कर रहा है, राइट ना? राइट, आई वांट टू सी सम डर्टी थिंग्स लाइक दिस, राइट? तो भगवान ने अगर मुझे सेंसेस ही नहीं दिए होते तो मैं उनका मिसयूज ही नहीं करता। दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग, राइट? सो व्हाट Prabhupada is telling, that is nonsense, and then further he will clarify. Go ahead. Rameshwara brought in another angle, a part of what seems to be a cycle of negative thinking by which Karandara has concluded that Krishna is at fault for all his problems. He says Krishna is playing games. Again, Prabhupada gave a practical example, simultaneously exposing Karandara's faulty logic and indirectly praising Rameshwara. I have given you charge of this BBT, millions of dollars you're dealing, but it is not for your misuse. As soon as you misuse, that is your responsibility. BBT is basically this Bhakti Vedanta Book Trust, जो सारे जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, हमारे गीता भागवत, जो भी इस्कॉन के जो भी लिटरेचर्स आते हैं वो वहां से पब्लिश होते हैं, ओके? तो प्रभु यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहे हैं?
जैसे कि लाइक रामेश्वर को बता रहे हैं कि आई हैव गिवन यू चार्ज ऑफ दिस डीबीटी where you are having millions of dollars to deal with right now, but it is not for your misuse. As soon as you will misuse, then it is whose responsibility? The same way Krishna has given you the senses and all, right? But Krishna has not forcing you to misuse them. If you misuse them, then it is whose responsibility? Our responsibility, right? Okay, go ahead. Yes, but he says, but still, you'll know that I'm going to misuse it. No, that Krishna knows when something charge is given, but because you're independent, I know that Rameshwara is a very good boy. Let him be in charge. But you can misuse at any moment because you have got independence. You can misuse at any moment. At that time, your position is different. That is this Karandharas. He was in this position, but as soon as he misused it, immediately Krishna changed his position. या देखो सुना हमको पॉइंट, तो उनको एग्जांपल दे रहे हैं कि तुमको जैसे मैंने बना रखा है इंचार्ज, अभी बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास में आते हैं, राइट? तो अब अगर उसका मिसयूज करोगे या नहीं करोगे वो किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है, राइट? तो किसी भी समय आपका माइंड चेंज हो सकता है ना, राइट? वो तो आप पे डिपेंड करेगा. इट्स नॉट दैट कृष्णा हैज प्लान्ड दैट यू विल नाउ मिसयूज इट, राइट? इट्स अल्टीमेटली योर चॉइस. वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना. गो अहेड. He is so foolish, Rameshwara said. His argument is that I should never be allowed to misuse my independence. There is no question of independence, then I added. Prabhupada agreed that is not independence. Independence means you can use properly or improperly. He cannot understand that, Rameshwara said. Prabhupada delivered his final analysis. He wants to become a machine. Rameshwara confirmed this. Yes, he had rather be a machine and be in Krishna's service. Rameshwara brought up several other misunderstandings, all of which Srila Prabhupada cleared up. Then again, he argues like this. Rameshwara said, he says, the living entity, cannot do anything without the sanction of God. So I am desiring certain sinful activities, but why is Krishna sanctioning it? Okay, fine. तो ये पहले वाला आर्गुमेंट समझ में आ गया, खत्म हो गया यहाँ पे, राइट ना? Papa told this, see, independence means you can use properly or improperly, right? Otherwise there is no meaning of independence, right? तो independence का मतलब ये है कि हम उसको या तो properly use कर सकते हैं या फिर improperly use कर सकते हैं, right? So, and that is how we are being provided with the free will, ना? Now I got and Papa told that he is just trying to be a machine. Machine मतलब कि क्या है? He is programmed. जैसा उसे करने के लिए बोलेंगे वैसे ही करेगा, right? But Krishna has not designed us in that way. Why? Because we are part and parcel of Krishna. Because Krishna is supremely independent. We also are being, we also have some independence. That is how. Now, next एक और misunderstanding उन्होंने क्या बोला? The living entity cannot do anything without a sanction of God. So I'm desiring certain sinful activities, but why Krishna is sanctioning it, right? Again उसने पूछा कि है ना, हम बिना कुछ भगवान की इच्छा के नहीं कर सकते, राइट? हम जो भी इच्छा करें, बट जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं किया जा सकता है, राइट ना? तो अगर मैं कुछ बुरी आदतों के लिए, कुछ सिंफुल एक्टिविटीज के लिए डिजायर कर रहा हूँ, तो भगवान उसको क्यों सैंक्शन कर रहे हैं? ये उसका क्वेश्चन है कर्णधर का. समझ में आप लोगों को? ना प्रभुपाद उसका एक्शन बताने से व्हाट इज दिस. Krishna does not sanction. Then how is it going on? Karandhara's main problem obviously lay in not understanding that our relationship with Krishna is reciprocal. So Srila Prabhupada gave another apt instance from his own life to demonstrate this principle. You insist, so Krishna, in disgust says, all right, do at your own risk, you rascal. You will not hear me. That's all. I have given this example many times that my son wanted to touch the table fan when he was only 2 years old. So the table fan was running and the child, he wants to touch it. So I am, no, don't touch. So, and he was, Prabhupada poked his finger out like a mischievous child. So there was another friend, he was doctor. He said that slow the speed and let him touch. So I did it. So he touched tongue. Then I said tongue. Then I said touch again. No. Prabhupada's eyebrows went up like a frightened child, making us all laugh. So it is like that. Okay, so what Prabhupada is mentioning here, एक example दे रहे हैं Prabhupada अपने life से, okay? कितने लोगों को समझ में आ गया वैसी चीज? Okay, कुछ लोगों को नहीं आया तो no problem, we'll understand it. तो उनका क्वेश्चन क्या था कि जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे मेरे बैड डिजायर्स को, तब तक मैं बैड डिजायर्स नहीं फुलफिल कर सकता हूँ, राइट? तो क्यों कृष्णा सैंक्शन करते हैं, ये कर्णधर पूछा है, राइट? तो पापा एग्जांपल बता रहे हैं किसी, ऐसा नहीं है कि कृष्णा खुद सैंक्शन करते हैं या कृष्णा खुद चाहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं. कृष्णा ने तो ऑलरेडी बोल दिया ना, कृष्णा इज ऑलरेडी स्पीकिंग थ्रू द गुरु साधन शास्त्र दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर प्रोहिबिटेड टू डू, राइट?
Krishna has already told that what are sinful activities and what are good activities, right? But we insist to do the sinful activities. So यहाँ पे बताने से we insist, and that's why Krishna discussed. Discuss मतलब कि no क्या बोलेंगे उसको? Discuss हिंदी का क्या? हिंदी means discuss means मतलब चर्चा नहीं होता है, डिस्कस होता है. डिस्कस मतलब होता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू कैन से, राइट ना. जैसे ना, जैसे मान लो लाइक कुछ कोई छोटा बच्चा है और वो चॉकलेट बहुत खाने लग गया, उसके दांत खराब हो रहे हैं, राइट ना. अभी कई बार क्या होता है, आपने देखा छोटे बच्चे जाते हैं मार्केट में और फिर क्या रोने लग जाते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और पता है कि उसके कैंडी से उसके दांत खराब हो रहे हैं, इसलिए मदद नहीं देना चाहती है, बट वो क्या वहीं पे करते हैं. कई बार पता होगा छोटे में ना बच्चे कैसे अपना गुस्सा निकालते हैं ना, लेट जाते हैं, हाथ पांव पटकने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, राइट. आसपास वाले लोग देख रहे होते हैं, लेकिन फिर किसी तरह से उनकी उनकी ठीक है, खा और तेरा बना मर. समटाइम्स मदर सेज, होता है, करती है ना. दैट इज हाउ कृष्णा आल्सो सेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस. डिस्कस मतलब कि परेशान होके फिर ठीक है कर्म फूटे तेरे. सुना है हम लोगों ने मम्मी से. क्यों? तो वैसे बता रहे कि कृष्णा आल्सो डज नॉट सैंक्शन अवर बैड डिजायर्स out of his he says okay, you're in discuss, he sanctions, all right, do at your own risk, you rascal, you will not hear me. So Krishna सैंक्शन करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत जिद्दी होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए. इट्स नॉट दैट कृष्णा, आप देखो अभी भी हम कुछ गलत चीज करने का सोचते हैं ना, तो आप देखो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं करना चाहिए. दैट्स परमात्मा's आवाज, बिकॉज परमात्मा इज इन द हार्ट, राइट. लेकिन अगर हम रिपीटेडली उस आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो स्लोली स्लोली वो आवाज भी फिर डिम पड़ जाती है, फिर आती नहीं है, आप देखोगे, राइट ना. बट जनरली आप देखो कोई नया सीन करने की सोचते हो ना, हमेशा एक अंदर से आवाज आती है कि यार नहीं करना चाहिए. वो कौन देता है आवाज? परमात्मा देते हैं आवाज एक्चुअली, दैट राइट. बट अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इफ यू डोंट हियर इट, देन स्लोली स्लोली परमात्मा आल्सो डजंट कम आउट. तो पापा यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे अपने बच्चे का, ये इलाहाबाद का एग्जांपल है ये. ओके, टेबल फैन पता है आप लोगों को? टेबल फैन नहीं होता है. छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, छोटे बच्चों को सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, राइट. आग में हाथ डालने में भी इंटरेस्ट होता है. तो इज टेलिंग अबाउट हिज सन दैट सन वाज वेरी मिस्चीवियस, और वो अगेन अगेन पंखे को छू के उसमें हाथ डालने की कोशिश करता था, राइट. तो पापा ने उसको बार बार बचाने की कोशिश किया, बट वो मस्त फिर भी बार बार पकड़ने की कोशिश करता था, राइट. तो उनके डॉक्टर फ्रेंड थे, उन्होंने बोला एक काम करो, पंखे को बंद कर दो, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा ना, तब उसको छूने दो थोड़ा सा हाथ. तो जब उसने छुआ तो टंग उसको दर्द हुआ लगा, राइट ना. उसके बाद वो समझ गया कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, राइट. फिर पापा ने बोला उसके बाद कि जाओ वापस टच करो, बोला नहीं अब मैं टच नहीं करूंगा. तो वैसे यू सी, वी आर डिजायरस टू go for sense gratification, we are desirous to go for some sinful activities, and Krishna does not want to sanction it, but we are so जिद्दी तो मुझे करना ही करना है. तो कृष्ण तो ठीक है चलो तुम करो फिर उसको, और फिर भुगतो अपने आप. जब भुगतोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे. दैट इज हाउ कृष्णा डील्स विद अस. समझ में आप लोगों को ये पॉइंट, ये पापा यहाँ पे बता रहे हैं. So it's not that Krishna wants us to do that. Krishna does not want us to kill the animals or to go for illicit sex intoxications. Krishna does not want, and that's why Krishna has made a system also to ensure that we are not inspired to go for it. See, Krishna has given provisions for yoga, Ayurveda, medicines, and good things, good food, and all those things, right? Because Krishna wants us to encourage us for doing those things, right? And on the contrary, you will find if somebody engages into illicit sex intoxication, तो गवर्नमेंट ही नहीं पनिश करती है, आप देखोगे भगवान की गवर्नमेंट भी पनिश करती है. क्यों पनिशमेंट दिया गया है? somebody wants to go for illicit sex, you see he gets AIDS. What is the meaning of AIDS? AIDS मतलब कि उसका कोई इलाज नहीं है. और what is AIDS में आपने पढ़ा होगा, पूरा आपका बॉडी का इम्यूनिटी जीरो हो जाता है. मतलब कि आपकी बॉडी एक ओपन ग्राउंड हो गया है, कोई भी आके आपकी बॉडी को खा सकता है. आपको कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट, माइक्रोब, वायरस कोई भी आके जैसे भी इन्फेक्शन देता है, खत्म. आपके पास इम्यूनिटी है नहीं, वो फिर आपका हरी बोल हो जाता है. तो देखो वो बहुत सीवियर पनिशमेंट दिया है. क्यों दिया है? क्योंकि जो सीवियर बैड हैबिट है उसके लिए भगवान ने बहुत सीवियर पनिशमेंट भी रखा है. बिकॉज कृष्णा डज नॉट वांट अस टू डू इट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट अस. गेटिंग ना? तो so Krishna sanctions because of in the discuss, not out of this. Okay, go ahead. Next कहाँ पे हम पहुंचे? यहाँ पे था ना, राइट. प्रोपाल्स बच्चे का एग्जाम्पल बताए, यहाँ से पढ़ो. Oh, it is actually Krishna's mercy that he allows him to feel the pain, Rameshwara said. For example, like now Prabhupada allowed his son to touch the fan. Was it out of mercy for him, or was it out of hatred for him? Mercy only, right? Although he has to go through the pain, but it's also mercy because the child is very adamant to touch it. तो फिर वही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है उस पर मर्सी शो करने का, राइट. टच करेगा, खुद थोड़ा लगेगा तो समझ में आएगा उसको. गो अहेड. Yes, Prabhupada affirmed. और अगर आप उसको पकड़ के रखोगे कि है ना, नहीं बेटा, है ना, पकड़ के रखेंगे हमेशा उसको, राइट ना, फिर वो क्या बोलेगा कि अरे मेरे पापा बड़े गंदे हैं, है ना, पकड़ के रखते हैं, मेरे को कुछ करने नहीं देते हैं, राइट ना. ही विल बिकम मोर रेबेलियस. समझे आपको?
इसलिए क्या है, better people go through the experience, they will not become rebellious. That's how Krishna does. Okay, go ahead. Yes, Prabhupada affirmed. He gives instructions just like I said, don't touch, it will hurt your finger. It is not good. No, no. So all right, touch. As the car as the car pulled into the side alley by the entrance of Srila Prabhupada's quarters, Pushti Krishna said, you mentioned that the more intelligent person can become obedient by hearing. The less intelligent person has to see and suffer. Prabhupada, So Prabhupada told this, you know. क्या बताया उन्होंने? जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कैसे सीखते हैं? सुन के सीख लेते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस को देखकर सीख जाते हैं, राइट? और जो थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं, दे हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस देमसेल्फ, राइट? ये वर्ल्ड इस तरीके से बनाया गया, राइट? या तो क्या है, आप दूसरे के लोगों को देखकर सीख जाओ, और नहीं तो फिर खुद ही भुगत के सीखो, राइट? दिस इज सेइंग इन इंग्लिश, राइट ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, करेक्ट? और उसके आगे एक और पार्ट है, यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? एनी वन ऑफ यू नो दैट फुल फ्रेज? Experience is the best teacher. So what do you say? Do you agree with this? Do we need to have experience for everything to realize that whether everything is good or bad or not? Right? Is the stool good? Do we have to go through the experience to understand it? Right? So many people say that, you know, it's not that, you know, you will find that we don't have to go through the experience of everything to know that whether it is good or bad, right? We don't eat the stool to understand that it's bad, correct? Or we don't have to go for intoxication to understand it is bad. We are seeing visibly so many people are into intoxications, they are suffering, correct or not? They are getting cancers, they are suffering. So we don't have to indulge into that thing, right? No? So that's why the saying goes, experience is the best teacher and the fools learns no other way. Experience is the best teacher and the fools learns no other way. जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग, सॉरी नॉट मूर्ख लोग, मूर्ख हो जाएगा आपका हरियाणवी, राइट? जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसी और तरीके से नहीं सीखते हैं, राइट? तो इसलिए पूरी सेइंग है ना, लोग जनरली पहले वाला पार्ट जानते हैं, राइट? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, राइट ना? ठीक है, सब चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं क्या? हम नहीं लेते हैं ना। इसलिए तो पापा यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग सुन के देखकर चीजों को समझ लेते हैं, राइट? और जो थोड़े बुद्धू होते हैं उनको थोड़ा खुद एक्सपीरियंस लेके सफर करके सीखते हैं वो लोग, लाइक दैट, है ना? गो अहेड. Prabhupada replied, by practical experience, देखे सीखे थे सीखे से, बंगाली बताया ना, Prabhupada from Bengali background, हाँ. देखे सीखे से means he's a fool. Unless he comes to the actual position, he does not learn. And therefore, Shastra Chakshus, one who follows the Shastra's instruction, he's safe. That is experienced already. Yeah, so why we want to follow the Shastras? Because Shastras में already truths दे रखे हैं जो आपको like experiment करने की जरूरत नहीं है. They are truths already. You just put it in your life, you will be successful, right? Now you don't have to go to the experience, right? On the contrary, what knowledge we are getting from Hanuman Pratyash, that is all simply experimental knowledge. You go through it, then you come out with some conclusions, and then you go like that. So Prabhupada यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, right? ना? Okay. So this answers the question about does Krishna knows our future? So in summary, what is the answer? Who can tell in 1-2 lines? Does Krishna knows our future? Abhishek Prabhu, take mic. What will be the answer? No or yes? No. No. Because, no and yes. The real answer will be no and yes. Why no? Sir, no, because it depends on our free will. How we are And- going to use our free will, right? And yes, because if we choose that path, then Krishna knows our future, predict our future. Yeah. And if we choose another path, then according to this, Krishna predict our future. So in that way, Krishna is Trikaldarshi, right ना? Trikaldarshi means Krishna knows that these things are going to happen, right? बाकी जैसे आप बताए थे ना, predictions दे रखे हैं, right ना? तो देखो predictions दे रखे कि कौन कौन आएंगे, personalities के बारे में दे रखा है, या फिर जनरली कलयुग में क्या क्या चीजें होंगी वो prediction दे रखा है, right? But exactly कार्तिक क्या करेगा जन्म लेके, वो prediction नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, right? आपके कुछ major activities बता सकते हैं, but ऐसा नहीं होगा कि वो डिवोटी बनेगा कि नहीं बनेगा, कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा, गेटिंग ना? बिकॉज फिक्स नहीं है, वो मैच फिक्स नहीं है, राइट? कोई बहुत प्योर सोल है, लेटर से सपोज जैसे लाइक प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद की कुंडली में लिखा था कि ही विल बी अ वेरी बिग सन्यासी एंड एट द एज ऑफ आफ्टर 60 इयर्स ही विल बी एबल टू, है ना, स्टार्ट अ बिग मूवमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज ये सब लोग बहुत बहुत प्योर सोल्स होते हैं. दे हैव अ बिग कोटा फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ
or they are directly sent by the God himself. तो इसलिए उनकी चीजें लिखी रहती है, राइट? सपोज अभी उनका ऑलरेडी देव डन 90% स्पिरिचुअल लाइफ इन देयर प्रीवियस लाइफ, जस्ट 10% बचा है, तो देन इट इज वेरी मच इजीली प्रेडिक्टेबल कि वो भी इस लाइफ में भी पूरे ड्यूटी बनेंगे और है ना वो लाइक बस अपने लास्ट चीजें छोड़ने के लिए आए हैं. तो इसलिए बहुत सारे बड़े लोगों के बारे में ऐसा लिखा रहता है बिकॉज उनके बारे में आप श्योर हो कि ऐसे ही रहने वाला है उनका लाइफ, लेकिन जनरल के लिए नहीं लिखा जाता है. समझ में आपको पॉइंट वाला पॉइंट? ओके, तो दिस वाज द मेन पार्ट इन दिस, राइट? सो कृष्णा नोज अवर फ्यूचर, yes and no both. No, in the sense that Krishna does not exactly know that how we are going to use our free will, and he knows in that sense that based upon what way we are going to use our free will, what is going to be the outcome, he knows in that particular regard. Okay, because Krishna has given us independence. Krishna has not made us like the robots. एक और यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल और है about the role of mercy. You know, maybe इसको भी हम read कर लेते हैं. What is the role of mercy in our life, right? कृपा का क्या हमारे लाइफ में रोल आता है? Read. Role of mercy. What is the role of mercy? Pushti Krishna Swami asked. For those who take and those who don't. Srila Prabhupada replied that mercy means if either unknowingly or by some bad habit one does some wrong, that will be excused. But deliberate transgression, he warned, are not forgiven. Guru Das Maharaj asked what unknowingly means. See, wait. तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? मर्सी का क्या मतलब है? If either unknowingly or by some bad habit one does something wrong, then that will be excused, right? तो मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर देता है लेटर से, राइट, कुछ बैड हैबिट्स के कारण, पहले की बैड हैबिट्स के कारण या फिर अननोइंगली कुछ कर देता है, तो उसके लिए उसको फिर भी एक्सक्यूज किया जाएगा. लेकिन डेलिबरेटली कोई अगर करता है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति कुछ सिंफुल एक्टिविटीज करता है, तो उसको फॉरगिव नहीं किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा. ओके, गो अहेड. हाँ, तो for example, like now, like let us say all of us are trying to become devotees now, let us say now. So now you understand that what is right, what is wrong, you know, what should be done, what should not be done right now. But now because earlier we have been into some bad habits for a long time. So now although we know they are bad habits and we are trying our best to get rid of them, but sometimes what happens, they may overpower us. Sometimes, let us say, right? And when you go through that experience, then you really feel disgusted that, oh, I don't want to do it now anymore, right? But I'm not able to fully give it up, right? So because that kind of repentance is there in your heart, so Prabhupada is talking about such kind of thing, right? So you don't want it to do it, but because of your previous conditioning, you're forced, somehow you're forced to get into that, right? But you're not enjoying that. For example, let us say somebody was very much habituated to seeing some wrong websites and all earlier, right? Now that one has got knowledge properly, now one is able to understand that what is to be done, what is not to be done. Now he is trying his best to not do it right now. But let us say sometimes because of that previous habit is very powerful. Sometimes in the beginning it may revisit you, right? You got an opportunity where nobody was there around you, or let us say got to meet with some of your old friends who were seeing that, and in their company you got to again see it again. Let us say right now. So then after that you will feel very bad actually speaking. Repentance will be there, right? तो ऐसा जो पाप हो जाता है ना, राइट, जिसमें कि हम बहुत रिपेंटेंट फील करते हैं और उसको वापस नहीं करना चाहते हैं, राइट, रिपेंटेंट हाथ के साथ जो करते हैं उसके लिए भगवान फॉरगिव कर देते हैं हमको. सुना है आपको ये पॉइंट? दैट इज राइट. लेकिन हाँ, कोई जानबूझ के कर रहा है, हैप्पीली होके कर रहा है, तो उसके लिए फिर रिपेंटेंस नहीं देते हैं भगवान, उसको फिर भगवान फॉरगिव नहीं किया जाता है, राइट ना? सुना है आपको पॉइंट? ओके, गो अहेड. Unknowingly means suppose you're a smoker. So now you have given up everything. See, पापा यहाँ पे बता भी रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, राइट? अननोइंगली का क्या मतलब है? हाँ, गो अहेड. But in the association of some smoker, you incline. All right, let me smoke. Then you regret, oh, I have done this. It can happen. So that is excused. But if you think now I'm a devotee of Krishna, I can smoke like anything and everything will be excused, then you are a rascal. Prabhupada से rascal actually उस समय बहुत prominent word था rascal ना. Prabhupada was brought up in the British times ना, तो rascal बहुत commonly use किया जाता था उस समय में, इसलिए like Prabhupada ऐसे बहुत है. अभी के समय में आप किसी को rascal बोलोगे तो वो बड़ा offended feel करेगा, but उस समय common like पागल के लिए rascal बोला जाता था, पागलपंथी के लिए बोलते थे rascalism. अभी आप मत बोल देना किसी को कि you are a rascal, मारेगा पकड़ के. हाँ, आगे बढ़ो. He said that the mercy of Krishna is that he wants us to come back to Godhead, even though we have no desire. If we take even one step forward, Krishna will take 10 steps towards us. Then why is there punishment and suffering? Another devotee asked. If God is all loving, why does he make us suffer? Prabhupada told him, Krishna loves us, but if we don't do what he says, then we must naturally suffer
as a child is burned by fire when ignoring the advice of his father. Yet he said that suffering is also mercy, because through such experience the soul will be purified and give up his enviousness of Krishna. So this question of freedom of Jiva and control of Krishna, Atreya asked that there is freedom, but at the same time there is no freedom. Is a very fine line between the two that sometimes we do not understand. But why don't you understand? Prabhupada rejoined. Hmm. Just like you belong to a free nation, America, does it mean you're free to do anything and everything? When you say, I belong to this free nation, then yes, you are free. But that does not mean that you can do anything and everything. It was a topic that devotees often debate. Just how much independence does the individual soul have? Pushti Krishna Maharaj pursued the point, if a person is habituated to smoking, is he free in that activity, or has he surrendered his freedom? It is like the person who smokes despite the government printing a warning on the box. Prabhupada said, one is free to do it, but not free from the results. Therefore, the living entity has minute but not absolute independence. It is like a child who is free to play, but as soon as he does something wrong, his father is there to correct him. Pushta Krishna Swami again took it further, wanting more clarification. This idea of freedom and independence, is it possible for anyone theoretically to surrender to Krishna at any time? Yes. So let's say someone is in a very degraded condition of life, mode of ignorance and passion. His mind always disturbed. In surrendering to Krishna, is it possible that he can be independent even of the mind? You are independent of the mind always. It is your mind. You are not the mind. Then you are independent of the mind always. Yeah. So basically क्या बता रहे हैं यहाँ पे? What is the main point being told here? That Krishna has given us a mindhood independence. Example was given of just like you're staying in a country. So now you are having some independence, right? But that independence means doesn't mean that you can violate the laws of the government, right? So simultaneously you have some independence and simultaneously you are under the control of the government. Same way Krishna also has given us some independence, and at the same time Krishna is also we are also dependent upon Krishna. We are also forced by Krishna's laws. So in that way Krishna has given us freedom. This is one thing. And second thing is, in whichever position we may be, we always have our free will with us, and it is up to us how we are going to use that free will. तो इवन अगर हम लोग बहुत सारे डिस्टर्बिंग सिचुएशन में भी क्यों ना पुट किए गए हो, लेकिन फिर भी हमारे पास हमेशा फ्री विल रहेगी. यहाँ पे पता है ना, मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस. राइट, आई वाज गिविंग द एग्जांपल अदर डे. कोई अगर सम में सपोज बॉर्न हुआ है जहाँ पे उसने बचपन से सारे गलत काम देखे हैं, बचपन से उसको ऐसे हैबिट्स में मौका मिला, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर भी चूज नहीं कर सकता भगवान के पास आने के लिए. ही कैन ऑलवेज properly use his free will and can come to Krishna. So that freedom is always there with us, that is there. Okay. So the main conclusion of all this, what discussion we have yesterday and today is what? If it has been told to you to summarize in maybe 2-3 sentences, what are the main thing? We have discussed two main topics. Does Krishna knows our future and is everything already destined in our life, right? So main summary क्या होगा? 2-3 sentence में. Maybe one by one we can take, right? Is everything destined in my life? इसका क्या summary रहेगा? So like some things are destined, like whether like our where we will be born, and like at what time we'll be born, at what time we'll die, how much money we'll have, and the looks, then diseases, chronic diseases and all. Yes. That is Destined. decided. That is destined. But how we use those resources, like how we use our wealth, how we use the resources we have in the current time, our birth, our birth, body, yes, our resources which we have, our talents, our skills, that is in whose hand? that is in our hand. Our That hand, is right? our free will, how we use it. And like what we have done in the past decides the amount of money and all we have now. Present destiny, okay? Yes, present destiny. And whatever we do now, that is like crafting our future Yes. destiny. So basically, we are the makers of our own destiny now, right? We have been getting something because of our past things, but now further course depends upon us. Okay, this is not going on. Distraction for all of you, right? Okay. Yeah, so that is the main thing, right? So everything is not destined in our life. There are some things which are destined, and
and there are some things which which are not destined. Basically what is not destined is again the free will, same thing. The free will is not destined, the free will is there with us, how we are going to use the things, and based upon our course of action we are getting the new karma, right? And one more thing is the main thing in that, right? Our material progress is destined, Sir, more or less, yes. but our But spiritual progress is it is like it is infinite. Like we can do how much ever we want in this our world. spiritual progress is completely into our hands. There's no bar for it. We can make as much spiritual progress as we want to have in our life. Okay. And about Krishna knowing our future, yes and no, as we discussed, right? Krishna knows, and Krishna knows that what consequences are going to be there based upon our free will, what choices we are going to make, right now. So in that way Krishna knows about this, right? So any questions? अभी आपके कुछ क्वेश्चन किसी के हैं तो पूछ सकते हैं, then we can end also. Yeah. हाँ, so see, astrology is a Vedic science. It's a Vedic science. हाथ पढ़ के भी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुंडली देखकर भी एस्ट्रोलॉजी होती है. You see, देखो क्या है, see this creation is very very scientific because there is an intelligent designer behind the creation. So when you are doing, see, as per your karma, what, see, as we discussed ना कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में destined है. आपका कितना वेल्थ होगा, कैसा आपका शरीर होगा. तो देखो कुंडली में क्या होता है, ये सब चीजें लिखी रहती हैं, राइट? आपका शरीर कैसे बना रहेगा, राइट? आप गोरे होगे, काले होगे, चट्टे होगे, क्या होगे, वो लिखा रहता है कुंडली में, आप देख लोगे, राइट? लाइक मेरे में लिखा है कि मैं पतला ही रहूंगा हमेशा, तो कितना भी फीस्ट खा लो, कुछ भी कर लो, बट मेरा बॉडी का वेट उतना ही रहता है, राइट? माई डाइट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट वो बॉडी का स्ट्रक्चर लिखा रहता है, कि कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका, रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है, राइट? तो कुछ चीजें जो डेस्टाइंड है वो दे आर, सी, डेस्टाइंड चीजें कहाँ से आ रही है? हमारे प्रारब्ध कर्मा से आ रही है. जो कर्मा हमने किया था, गुड एंड बैड कर्मा, उसके हिसाब से वो चीजें आ रही हैं. तो कुंडली में क्या चीजें लिखी रहती है? जो हमारे डेस्टाइंड चीजें हैं वो चीज जनरली लिखी रहती हैं. और ये साइंस है ना? इट्स अ साइंस, इट्स अ लॉजिकल साइंस, राइट? तो कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएंगे तो ही विल बी एबल टू प्रेडिक्ट फॉर यू कि आपके लाइफ में क्या क्या, कौन से प्रोफेशंस आपको सूट करेंगे, और कैसे शादी किस एज में आपके पास होंगी, ये सब चीजें प्रेडिक्ट रहते हैं, क्योंकि वो पुराने कर्मा के ऊपर बेस्ड हैं चीजें, राइट? जो तो प्रीवियस चीजें हैं वो हमारे कर्मा के हिसाब से बेस्ड हैं, तो वो दे आर एबल टू मेक, बिकॉज इट्स अ साइंस बेसिकली. लेकिन हाँ, कैसे अभी आप अपना जीवन जीने वाले हो वो जरूरी नहीं है. दैट्स इन योर हैंड. क्या क्या रिसोर्सेज आपको मिलेंगे पुराने जन्म से, वो सब फिक्स्ड है. वी डिस्कस ना, मटेरियल डेस्टिनी इज मोर और लेस फिक्स्ड. तो वही मटेरियल डेस्टिनी का ही पार्ट है ना. कौन सा प्रोफेशन मिलेगा, कितना वेल्थ आप अर्न कर पाओगे, कौन से बिजनेस में आप सेटल होगे, है ना, कौन से वाइफ से आपका मैरिज होगा, ये सब चीजें मोर और लेस फिक्स्ड रहती हैं. लेकिन अभी आपका बाकी जो, कैसे आप उसको यूज करने वाले हो, अभी आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लेटेस्ट से आपके बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है, बट अब उस प्रॉपर्टी को आपने कैसे यूज किया या नहीं किया, वो आपके हाथ में. दैट इज इनटू योर हैंड. ओके, सो इट्स अ वैदिक साइंस है, इट्स अ फिजिबल साइंस. ओके, और कुछ? ये समित तो कुछ पीरियड्स बताए जाते हैं कुंडली के टाइम में, कुछ पीरियड्स बताए जाते हैं कि जैसे सपोज 30 साल की उम्र में आपके ऊपर में खतरा आने वाला है बड़ा. अगर आपने इसको पास कर लिया तो फिर आप 60 साल की तक जियोगे लाइट एट. तो ऐसे डेट का टाइम उस तरीके से फिक्स नहीं होता है. ऐसे फेजेस बताते हैं कुंडली के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका डेथ लिखा है, अगर आपने उसको पास कर दिया तो फिर आपका उस समय पे डेथ होगा. लाइट एट इट इज बीइंग फिक्स्ड. ओके, और कुछ? ये सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा था कि जो गॉड है वो हम लोगों को सेंसेस दिए हैं, तो हम अगर जिन्हें किस वे में यूज करेंगे तो वो अच्छे काम में यूज करेंगे तो वो अच्छे में जाएंगे, हमारे स्पिरिचुअल में अगर हम उसे यूज करेंगे स्पिरिचुअल में जाएंगे, गलत काम में यूज करेंगे गलत में जाएंगे. हाँ. और जैसे कि सर गॉड ने हमें दिए हैं यूज करने के लिए, लेकिन सर जिन्हें नहीं दी हैं तो उसका क्या सेंस है सर? जैसे कि किसी को आंखें नहीं दी भगवान ने, करेक्ट. और किसी को कान क्यों नहीं दिया उनको, राइट? जी जी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, राइट? somebody would like to answer this question? या सर वो पास्ट कर्मा की वजह से होता है सर. हाँ, करेक्ट. लेकिन सर अभी डिस्कशन में जो चल रहा था ना कि हमें जो दिया गया है हम उसे किस वे में यूज करेंगे, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आई कि सर ऐसा क्यों किया गया है. वो हाँ, पास्ट कर्मा की वजह देखो से जैसे होता आप मुस्लिम कंट्री में, जैसे हमारे प्रभु है ना, मुस्लिम कंट्री से आए हैं ना, वहाँ पे देखो होता है कि सपोज किसी ने ना चोरी किया तो हाथ काट दो उसके, ना रहेंगे हाथ, ना करेगा वो चोरी, राइट? किसी ने गलत नजरों से कुछ किया है राइट से, तो आंख आंख निकाल देते हैं वो, राइट ना? तो क्यों किया गया? ताकि वो उससे वो काम ना कर सके, गेटिंग ना? तो वैसे ही क्या है, नेचर के लॉ के हिसाब से भी ऐसा रहता है, किसी ने कुछ गलत काम किए हैं तो उसके हिसाब से उसको कुछ सेंसेस नहीं दिए जाते हैं. सी, नॉर्मल पर्सन को ही हैज फ्रीडम टू हैव हिज हैंड्स एंड ऑल, राइट?
बट नाउ वन हु हैज डन सम क्राइम विद द हैंड्स, तो उसको फिर वो फैसिलिटी नहीं दी जाती है, गेटिंग ना सेम वे दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन द कर्मा ओनली, राइट? किसने पास्ट में मिसयूज किया है, दैट इज हाउ इट इज बीइंग पनिश्ड, राइट? अभी आपके पास में हाथ नहीं है, then you are having difficulty na to do many of the things, your miseries will increase more, so that is how they are being punished. Okay, और कुछ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड? So actually one important thing I just want to say, can you tell that how we can always be ensured that we'll be using our free will properly? So especially in this age of Kali Yuga now, suppose how many of you want to use your free will properly now? फर्दर एटलीस्ट पुराने में जैसे भी यूज किया भाड़ में जाए वो, बट अभी आगे चाहते हो, राइट ना? कैन यू शेयर दैट how you can ensure that you will be able to use your free will properly, right? Okay, 1 2 3 4. Okay, कार्तिक ब्रो से स्टार्ट करते हैं. सर रेगुलरली मतलब अपने गुरुजनों से बात करके और शास्त्र में जो लिखा है वैसे फॉलो करके. ओके, तो अगर हम लोग हमेशा शास्त्रास और डिवोटिस के एसोसिएशन में रहेंगे तो, राइट? स्पेशल मास्टर बोल रहे गुरु के, राइट? अगर हम गुरु के और शास्त्र के अंडर में हमेशा काम करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं. गुड पॉइंट. आप कुछ अभिषेक? यस सर, यही वाला, अगर हम स्क्रिप्चर्स को बेस रख के उन्हीं को फॉलो करते हुए अपनी फ्री विल डिसाइड करें तो वो. हाँ, वेरी नाइस, गुड. और कुछ इसके अलावा? या सो दिस इज अ सिंपल फंडा. हाँ हाँ हाँ, दिस इज अ मेन थिंग, राइट ना? इसमें फिर सारी चीजें अपने आप हो जाती है, राइट? सो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज इफ यू विल स्टे इन अ गुड एसोसिएशन ना, then automatically you will find, we will be inspired to use our free will properly, right? अगर हम गलत एसोसिएशन में रहेंगे तो फिर we will have more probability to misuse our free will, right? And see why there will find the force to misuse is generally more than force to properly use it. जो misuse करने की जो force है वो ज्यादा रहेगी हम सब में. क्यों ज्यादा रहेगी? Can any of you say? ऐसा बस कुछ गलत एक्टिविटी करना है उसके लिए ज्यादा फोर्स हम पाते हैं हमारे हार्ट में, राइट ना? रादर देन अच्छी एक्टिविटी करने के लिए, राइट? हो सकता है कि कोई बहुत शुद्ध बैकग्राउंड का हो तो शायद उसका अलग हो, बट जनरली ऐसा रहता है ना, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा स्ट्रांग हमारे हार्ट में हम देखते हैं रादर देन अच्छी चीजों को करने के लिए. ऐसा क्यों है हमारे हार्ट में, बताओ गौतम ब्रो? हाँ, सिर्फ साल से नहीं, अनेकों जन्मों से किया है, तभी तो इस वर्ल्ड में टिके हुए हैं ना हम लोग, राइट? बैठे द वेरी फैक्ट दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड, राइट? जैसे होता है ना क्लास में बैक बेंचर्स नहीं होते, बैक बेंचर्स, राइट? वो पीछे बैठते हैं वो, और फेल होने का उन्होंने नाम ले लिया होता है. वैसे ही सतयुगा था, हमने वी डिड मेक इट आउट. Treta was there, Dwapar was there, Kalyuga then came. Now we are like the backbenchers. We have to understand we are the backbenchers. इससे कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों में. Because भागवतम says this, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादुता. ये कलयुगा किसका एज है? वो टॉपर्स का एज नहीं है, ये किसका एज है? बैक बेंचर्स का एज है. तो इसलिए शास्त्र में बता भी रखा है कि वो बैक बेंचर्स कैसे होंगे. आई विल शो यू फ्रॉम द शास्त्र, राइट? कलयुगा वाले लोगों का क्या सिम्टम होगा बता रखा है, मंद सुमंद मतयो. See this is about all of us, the worthy people of Kalyuga. See, this is what Bhagavatam says. प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादृता. See, read. Full one in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Yeah. तो ये फीचर्स बता रखे हैं कलियुगा वाले लोगों के लिए, राइट? दे विल हैव शॉर्ट लाइव्स, राइट? कितना छोटा जीवन होने लग गया ना आजकल. देखो आजकल हार्ट अटैक आने लग जाता है 20 साल के लड़के को, 25 साल के लड़के को, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप देखोगे, राइट? तो लाइफ ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगी. और क्या होते हैं? झगड़ालू होते हैं, क्वेरलसम, राइट? ठीक है, छोटी छोटी बातों पे एकदम फ्यूज उड़ जाता है लोगों का. कलियुगा की निशानी है ये. टॉयलेट नहीं कर पाते हैं कुछ भी, राइट ना? देखो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई कर लेते हैं लोग एक्चुअली. ये देखो लेजी, स्पिरिचुअली बहुत लेजी रहेंगे एक्चुअली. स्पीकिंग मेंटली बहुत हो सकता है बहुत भागदौड़ करते हो, बट स्पिरिचुअली बहुत लेजी रहेंगे, राइट? दे विल नॉट वांट टू. एंड मिसगाइडेड मतलब कि क्या है? दे विल नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, दे विल बी इनटू इल्यूजन्स, they will have different goal of life, they will not be able to understand about the real goal of life, and they will be unlucky also. unlucky क्यों? खाने के लिए कोई अच्छा नहीं है, पीने के लिए कोई अच्छा नहीं है. इवन कोई अगर स्पेशल चीजें के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहता है तो
उसमें भी बहुत सारे लोग उसको मिसगाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, right? 90% of the people who are so-called spiritualists, they are misguiding the people, you will find. So that's why they are called as the unlucky. And above all, they are always going to be disturbed. Right? सबको डिस्टर्ब मिलेगा आपको, राइट? इससे आप किसी से भी मैच करने की बात करने की कोशिश करोगे, वो डिस्टर्बेंस आपको भी दे देगा, राइट? राइट, सो आप देखोगे सबको डिस्टर्ब रहेगा, राइट? किसी से भी बात करो, आप देखो वो बोलेगा अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग डिस्टर्ब्ड, राइट? तो ये क्या बात हो रहा था, ये वाला पॉइंट क्यों हम लोग लेके आए इससे पहले? हाँ, कंडीशनिंग वाला बात बता रहे थे, गौतम ब्रो बताए थे, राइट ना, कि बहुत सारे लाइफ टाइम का हमारे ऊपर में वो कंडीशनिंग है, इसलिए आप देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ बैड थिंग इज मोर पावरफुल देन फोर्स ऑफ डूइंग गुड थिंग्स इन आवर हार्ट्स, राइट ना? बट सी, इफ वी नाउ मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज and to let our life being guided by the Guru, Sadhu and Shastras, then we will find that this conditioning will change. See, like for example, to give you an example, right? Now, many of us may have conditioning to get up late in the morning, right? But now because you came in the association, you would also, practice, you also remain determined and you tried to do this practice. Now, see, that conditioning has changed or not? Why can you change, right? So that is how, if we have a good association and we put ourselves into the process, then the conditionings will change. तो ये तो फिजिकल कंडीशनिंग्स हो गया। इस तरीके से आप देखो कि जो हमारी इंटरनल कंडीशनिंग्स है ना, इनर कंडीशनिंग्स, राइट, लस्ट, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन्स, वो सब भी धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाता है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस परफॉर्म करते हैं। एंड दैट कैन ओनली बी डन ओनली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। नथिंग एल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन डू दैट, रिफॉर्मेशन ऑफ द कंडीशनिंग्स। That reformation can happen only by the spiritual knowledge. That is only can lead to the purification of heart. Especially बाहर वाली conditions फिर भी कोई दूसरे लोग हेल्प कर सकते हैं, दूसरी चीजें हेल्प कर सकती हैं, बट जो इनर कंडीशनिंग्स है ना, वो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही प्यूरिफाई कर सकते हैं, स्पेशली द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, दैट्स व्हाई। ओके, और कुछ क्वेश्चन दसने से? Okay, so now it's 8:55. We'll end it here now. Afternoon we have a session on tug of war. जो एस्ट्रोलॉजी है, हाँ, इसमें भी कुछ ये होता होगा कि हम इस पार्ट पे जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता होगा अगर, हाँ, यस, तो वही इसलिए प्रोबेबिलिटी बताते हैं वो जनरली, राइट ना, कि मोस्टली जैसे लाइक सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशंस में आपके पास कौन से प्रोफेशंस में आपका इंक्लिनेशन रहेगा, राइट? देखो क्या होता है, वो भी गुणा पे होता है। अभी प्रीवियस लाइफ के हिसाब से आप कौन से गुणा में प्रोमिनेंट हो वो मेकआउट कर सकते हो, राइट? सतोगुण में रहोगे, रजोगुण में रहोगे, तमोगुण में रहोगे, राइट? अभी सपोज कोई तमोगुण में है, देन आप इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके खाने की हैबिट्स क्या होंगे, आप बता सकते हो कौन से प्रोफेशंस वो चूज करना चाहेगा, आप बता सकते हो किस तरीके की जगह में रहना चाहेगा, आप बता सकते हो, राइट? तो उस पर डिपेंड करता है, दैट्स राइट, हाउ राइट। तो वो भी आपको बताते, प्रोबेबल चीजें बताते, राइट? बट अल्टीमेटली पर्सन का फ्री विल तो है हमेशा, राइट? और देखो एक और चीज, आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको। देखो, जो डिवोटी नहीं होता है ना, उनकी लाइफ कुंडली से एकदम एग्जैक्टली मैच करती है, राइट? उनका जो लिखा होता है कुंडली में ना, कि बंदा ये करेगा, ऐसा ऐसा होगा, है ना, ये सारे काम करेगा, वो एग्जैक्टली मैच करता है। क्यों मैच करता है? बिकॉज उनकी फ्री से, देखो अगर हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी फ्री विल एक तरीके से सोई हुई रहती है। देखो, एज पर वट एवर कर्मा वी हैव डन प्रीवियसली, गुड कर्मा एंड द बैड कर्मा, नाउ वी विल हैव सर्टन सेट ऑफ माइंडसेट, certain set of activities where we will be inclined to do, कुछ चीजें हम करने के लिए इंक्लाइंड रहेंगे, राइट ना? तो फ्री विल भी क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए आपको थोड़ा बुद्धि चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, राइट ना? समझे आप? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए ही नहीं हो, तो आपकी फ्री विल सोई हुई रहती है। सोई हुई रहती है मतलब कि यू आर बीइंग ड्रैग्ड बाय योर प्रीवियस कर्मा। पुराने में आपने कुछ लस्टेड डिजायर्स क्रिएट किए हैं अपने सिस्टम में, अभी वो लस्टेड डिजायर्स आपको फोर्स करेगी इस लाइफ में भागने के लिए, इधर भागने के लिए, उधर भागने के लिए, राइट? तो वन इज नॉट एबल टू एक्सरसाइज एनी फ्री विल, राइट? लाइक एक्सपीरियंस किया आपने, बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो हम नहीं करना चाहते थे, बट वी आर फोर्स्ड टू डू दैट इन अवर लाइफ, होता था। बहुत सारी कंडीशंस हम छोड़ नहीं पाते थे, राइट? उठना, सुबह उठना छोड़ दो, कुछ रॉन्ग चीजें देखना, क्यों? क्योंकि वो पुराने कर्मा के हिसाब से वो चीजें हमारे हमें में लिखी हुई हैं, तो इसलिए हमारे पास फ्री विल हम एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे थे, राइट? इसलिए जब हम स्पिरिचुअल प्रोसेस को लेते हैं तब हमारी फ्री विल भी मैनिफेस्ट होती है, देन वी आर एबल टू एक्सरसाइज अवर फ्री विल। समझ में आपको? तो जो लोग स्पेशल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनके जो कर्मा के हिसाब से जो लिखा है, गुड और बैड कर्मा के हिसाब से, वही चीजें वो लोग बाय डिफॉल्ट मोड में वही चीजें उनके लाइफ में चलती रहेंगी, क्योंकि उनके पास फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। दे आर सिंपली बीइंग ड्रैग्ड बाय द प्रीवियस कर्मा। लेकिन ओनली व्हेन यू बिकम अ डिवोटी, when you get a devotional strength by practicing devotional service, by chanting and by this knowledge, we get a strength, then we are able to have exercise of our free will। सुना आपको? तो अब देखो,
इससे हो सकता है कि आपकी भी कोई बहुत बड़ी बैड कंडीशनिंग रही होगी, बट सी नाउ यू आर एबल टू से नो टू देम। हो पा रहा है ना, क्योंकि अभी आपकी फ्री विल जग पा रही है, आपको स्ट्रेंथ मिल पा रहा है, इसलिए चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि अब आप अपने बोलते ना अपने बलबूते पे खड़ा होना, अब बलबूते पे आप खड़े हो पाते हो, अगर उससे पहले फ्री विल का कोई रोल ही नहीं रहता है। आप देखोगे सोई हुई फ्री विल रहती है, मतलब व्यक्ति जस्ट ड्रैग हो जाता है अलग अलग एक्टिविटीज से, राइट? बट जब हम डिवोटी बनते हैं तभी इसको एक्सरसाइज कर पाते हैं, राइट? इससे डिवोटी के लाइफ में आप देखोगे हमारी कुंडली से नहीं लेना देना नहीं रहता है, कुंडली पीछे चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अभी आप इस लाइफ में यू हैव कम इन द गुड एसोसिएशन, यू आर रेडी टू फॉलो द वर्ड्स ऑफ गुरु साधु एंड शास्त्रस, तो वही चीजें मैटर करती हैं। आपकी जो आगे की जो लाइफ है वो उसी पे बेस्ड रहेगी, राइट? पुरानी कुंडली में जो लिखा था वो सब खत्म हो जाता है, फेज, नो लाइक दैट। डज इट मेक सेंस टू यू? समझ में आपको वाला पॉइंट, राइट? तो इससे आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाओ, बताओ आप डिवोटी हो, बता देगा कि मैं वो बताएगा कि देखो आपकी कुंडली के हिसाब से ये सारी चीजें प्रोबेबल हैं आपके लाइफ में, राइट ना? लेकिन बिकॉज यू आर नाउ बिकमिंग डिवोटी ऑफ कृष्णा, these things may not act in your life, right? No, it means nobody can predict about your future life, because क्या जब हम डिवोटी बनते हैं then we allow ourselves to follow the guru sadhu and the shastras, तो उसके हिसाब से हमारा लाइफ अलाइनमेंट हम कर देते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स कैन नॉट प्रेडिक्ट, हमारा प्रीवियस कर्मा फिर होल्ड ऑन नहीं करता है। सिर्फ जब हम डिवोटी बनने लगते हैं तो हमारा जो प्रीवियस कर्मा भगवान ले लेते हैं अपने पास। कृष्णा रोल ना, सर्व धर्मान परित्याज माम एकम शरणम जज हम तुम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, तो भगवान हमारे सारे कर्मा को ले लेते हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा दोनों भगवान ले लेते हैं, और फिर जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा भक्ति में थोड़ा सीरियस होने के लिए, उसके हिसाब से भगवान उन कर्मास को देते हैं हमारे लाइफ में, राइट? फॉर एग्जांपल आप डिवोटी बन गए, थोड़ा ढीले ढाले डिवोटी हो लेट अस से, राइट? आपको लग रहा है कि ठीक है सब ढीला ढाला प्रैक्टिस करता हूं, राइट? नहीं, फिर भगवान क्या करेंगे, आपको जो बैड कर्मा है उसका थोड़ा सैंपल देंगे आपको, राइट? आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, राइट? तो आप थोड़ा सीरियस हो गए कि अरे यार अच्छे से चैंट करना चाहिए यार, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, चलो अब थोड़ा सीरियस बन जाओगे, दैट्स राइट। तो भगवान करते हैं, राइट? तो भगवान को ऐसा मौका देना चाहिए सब करने के लिए। बेस्ट है कि हम खुद ही सीरियसली प्रैक्टिस करते रहे, तो नहीं करेंगे, भगवान को ट्रबल नहीं देना पड़ेगा। ओके फाइन, बोलो। हम्म हम्म भगवान तो सबके लिए डिजायर करते हैं कि सबको इधर आ जाए और सबको टिक जाए, बट क्या है, सबको आना नहीं चाहते ना। आप देखो क्या ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी ये क्या आपके बाकी फ्रेंड्स को नहीं मिली थी? जब आपका पहला प्रोग्राम किए होंगे सबके लिए ओपन था ना, डिवाइस वाज ओपन फॉर एवरीवन और नॉट, राइट? एवरीवन वाज ओपन, राइट? बट वही ना, हमारा जो मटेरियल डिजायर्स है, कंडीशनिंग इतना पावरफुल है इस वर्ल्ड में कि हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स भगवान तो चाहते हैं, सबके लिए ऐसा चाहते हैं, एंड वी आर द फॉर्चुनेट वंस दैट वी आर रेडी टू reciprocate with Krishna's desire. Krishna is also designing for us, and we are also ready to accept Krishna's proposal in our life. And of course, Krishna's proposal is for everyone. Krishna is proposing everyone, but we are the fortunate ones that somehow we have been inspired to accept that proposal from Krishna. In that way, we are fortunate, we can say right now. And as long as we will understand the worth of what we are getting, then we will be able to appreciate this thing in our life. Okay. और कुछ टॉपिक से हटके थोड़ा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? पूछ लो। या डज नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट? Yeah, it exists now. This lust, greed, anger, envy, ये सब तो नेगेटिव एनर्जीज ही हैं, एग्जिस्ट करती है ना। डू यू पर्सन वांट मोर एलैबोरेट? मतलब नेगेटिव कौन सा, और कौन से नेगेटिव का? जैसे कि भूत प्रेत। हाँ सही सर, हाँ एग्जिस्ट करते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच। क्योंकि सर कुछ लोगों को ऐसा कुछ लगा। हाँ, या कई लोगों को दिखते हैं भूत दिखते हैं। कोई है क्या यहाँ पे भी देखने वाला? कुछ लोगों को यहाँ पे लगा कि ऐसा। हाँ देखो क्या है, भूत प्रेत ये सब तो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इट्स अवर फिलोसफी ना, फिलोसफिकल चीजें वो, राइट? जो 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 जो, जो लोग ने बहुत सिंफुल लाइफ जिया हुआ होता है ना, उन लोगों को फिर इस तरीके से पनिशमेंट मिला जाता है कुछ समय के लिए। दे बिकम घोस्ट एंड ऑल। उनको बॉडी नहीं प्रोवाइड की जाती है, दे हैव टू रोम इन द सटल बॉडी। वी नो ना, एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट हैपेंस इज आत्मा मूव्स टू द नेक्स्ट बॉडी अलोंग विद द सटल बॉडी। सटल बॉडी में क्या होता है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो माइंड में हम जो भी डिजायर स्टोर करते हैं उसके हिसाब से हमको अगला ग्रॉस शरीर मिलता है, राइट? तो अभी कोई व्यक्ति ने अगर मिसयूज किया अपने ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा, तो या फिर दूसरे तरीके से किसने अगर सुसाइड किया है जानबूझ के ना, तो फिर उसको ये पनिशमेंट मिलता है घोस्ट वोस्ट बनने के लिए। बिकॉज गॉड हैज मेड अरेंजमेंट फॉर हिम टू स्टे इन दिस बॉडी, टू यूज दिस बॉडी प्रॉपर्ली, दिस अ वर्दी गिफ्ट, बट उसने उसको रिजेक्ट मार दिया सुसाइड करके।
तो फिर उसको कुछ समय के लिए पनिशमेंट मिलता है इस तरीके से भूत वूत। तो भूत पिशाच ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं, मतलब बहुत से लोगों को भूत वूत दिखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यस दे कैन हार्म अस आल्सो। जो लोग थोड़े जनरली जो थोड़े वीक माइंडेड होते हैं, मतलब उनको फिर वो लोग ओवर पावर कर लेते हैं, वो सब कर देते हैं, राइट। बट एनीवेज डोंट वरी, इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, नो भूत पिशाच, नथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट वरी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, राइट। चाको राके साइया मार सके ना कोई, राइट। तो यार डिवोटी को नहीं ट्रबल करते हैं घोस्ट वोस्ट, वो सब नहीं कर सकते, राइट। बिकॉज दे कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ डिवोटी ओनली एक्चुअली चैंटिंग हरे कृष्णा। ओके, डोंट वरी, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा ना, नो घोस्ट विल डू एनीथिंग टू यू, राइट। उसका भी उद्धार हो जाएगा एक्चुअली। इन एकोमोडेशन, अच्छा बताओ क्या, बताओ बताओ ऑनेस्टली बताओ क्या। सर हाँ बताओ बताओ। सर जैसे ये उत्कर्ष जी हैं तो ये अकोमोडेशन पे आराम कर रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी रात को हाँ 8 बजे, हाँ हाँ और हम सब इधर मतलब ठीक है, हमारा प्रोग्राम चल रहा था, क्लास चल करेक्ट रही थी। करेक्ट। तो इन्होंने कुछ फील किया कि जैसे कोई परछाई वगैरह अपीयर हो रही है इनकी दीवार पर, और हो रही। ओके तो वो टाइम ऐसा जनरली नहीं था कि वहाँ कोई आए। तो इन्होंने बताया, ठीक है, और कुछ। और इन्होंने बताया कि मतलब इनके कमरे में इन्हें काफी बड़ा नाखून भी मिला एक, और काफी बड़ा नाखून भी मिला, ओके। एंड इनने भी सर कुछ एक्सपीरियंस किया है। हाँ सर अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, रात को 2 बजे के आसपास। तो सर मैं वॉशरूम गया था, तो उस टाइम पे, हाँ वो 1:30-2 बजे के बीच में। तो उस टाइम पे मैं वॉशरूम गया था सर, जब मैं फिर बाहर आया तो फिर बाहर से हमारा उस टाइम पे गेट किसी ने नॉक करा। ओके और फिर जब मैंने बाहर मतलब कि गेट नहीं खोला था, मैंने विंडो से देखा तो फिर सर बाहर मतलब शैडो थी। तो मतलब अच्छा, सर उस टाइम पे फिर मैंने कार्तिक को भी उठाया था, लेकिन कार्तिक कह रहा सो जा। कितने 2 बजे की बात है रात को? यस सर, श्योर, आप श्योर हो? यस सर श्योर। ओके ओके, और कोई? वाह, सर जनरली सर 4 बजे करीब उठता हूँ मैं, 3:50 के करीब। तो सर 3:30 बजे की बात है सर, एक बार आंख से खुली थी मेरी, तो देख रहा हूँ सर बाथरूम में कोई नहा रहा है। मैंने फिर सर कल सीनियर से कंफर्म भी किया था कि कब की बात है ये? सर शुरू के दिनों की नहीं बात है नहीं क्या सर, अभी की? अभी 1 हफ्ते के करीब की शायद, या थोड़ा उससे पहले। 3:30 बजे तो कई बार अपने ड्यूटीज भी जल्दी उठ जाता है ना आने धोने सर के मैंने लिए। कंफर्म इसी वजह से कल किया था, सर से पूछ रहा था मैं कि सर कि आप हमारे बाथरूम में आके नहाए थे क्या, वैसा कुछ। हाँ तो तो सर नहाते क्या जनरली उनके नहीं आते हैं, ओके ओके। बाथरूम के अंदर कोई था उस समय? हाँ सर नहा रहा था वो। नहा रहा था मतलब? इतना नोटिस नहीं किया लेकिन हाँ था कोई, ये बात है। मैं बंद था क्या बाथरूम? आपका कोई फ्रेंड तो नहीं था उस समय? ओके ओके, डोंट वरी। देखो क्या है, मतलब मीन्स बहुत श्योर भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था, डोंट वरी। बट एक चीज समझ लेना चाहिए कि हमको कोई हार्म नहीं कर सकता है। भूत वूत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई डिवोटी है तो किसको हार्म नहीं कर सकते, डोंट वरी, राइट। और हो सकता है कि उस लोकेलिटी में एक्चुअली क्या ट्रेन है ना, पास में ट्रेन, कई बार क्या ट्रेन में लोग सुसाइड कर देते हैं ना, मतलब ट्रेन के सामने आके कटवट के ऐसे कर देते हैं, राइट ना। तो वो सबके घोस्ट वोस्ट उधर ही आसपास मंडराते रहते हैं, जनरली ऐसा होता है कभी कभार। डोंट वरी, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको सर। सर रात को हाँ सर नहीं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि घोस्ट क्या है ना, ड्यूटी को कुछ हार्म नहीं कर सकते हैं। इफ यू से हरे कृष्णा एंड हम नरसिंह को वर्शिप करते हैं ना, अर्जुन डजंट। शाम रात के टाइम सर सोने से थोड़ा पहले सर सारे आगे सर ऐसा माहौल बना दिया सर, डरा के रख दिया। ए सब नहीं करना है, अननेसेसरी डराने बनाएगा ना ऐसे आप। डर लग रहा था? नहीं वो तो इसलिए उन्होंने खाली किया क्योंकि अभी वो चले गए ना, नोटिस कम हो गए। दिक्कत तो यही इसी महीने के लिए लिया था ना आपने? उसी महीने के लिए लिया था, राइट ना? सर कि बता रहे थे, ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि अपने पास कि तुमने क्या नोटिस किया, तो मेरा फोन ऐसे ही हाथ में था, कुछ भी नहीं, सब बंद था। तो चलो आज शाम को हम सब मिलके कीर्तन करेंगे यहाँ पे, जो भी सारे भूत वित सब है सब भगा देंगे, ठीक है चलेगा? हरि बोल। भूत में इस टॉपिक में अच्छा अच्छा, मेरे को आई थिंक आपका 10:30 से प्लान किया ना आपने, तो
प्रसाद के टाइम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो अबाउट भूत भूत के लिए ना वरीड मत रहो, है ना? ऐसा होते हैं जनरली, इतना हर किसी को नहीं दिखते हैं। पहली बात तो ये भी है, भूत ना बहुत क्वालिफाइड लोगों को दिखते हैं जनरली। या तो और क्या, ये आपस में बात करके आप ऐसे थोड़ा और वो कर देते हो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर है भी कुछ मान लो तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं कर सकते, हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, तो देखो या तो वो सब्जेक्टिव है, मतलब आपने क्या देखा क्या नहीं देखा वो सब ऐसे थोड़ा, ऐसे डरने वाला। आप लोग ऑलरेडी चैंटिंग करो, आपको कुछ नहीं करने वाला, डोंट वरी, राइट ना? और थोड़ा अगर है तो एक अच्छा कीर्तन लगा देना वहाँ पे, राइट? और नहीं तो थोड़ा शाम को जाके कीर्तन कर लेना भैया वहाँ पे। हाँ, मंत्रा बॉक्स इज आल्सो देयर विद यू, ओके फाइन। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स ना, जनरली नहीं होता ऐसा कुछ। मतलब जनरली आपको ट्रबल, अगर मान लो कुछ होता भी है तो भी ट्रबल नहीं कर सकता हम लोगों को। इट्स देयर इन द प्रॉमिस, आई कैन शो यू आल्सो इफ यू वांट, कि कोई अगर as soon as if somebody is chanting Hare Krishna, no ghost, no भूत पिशाच, nothing। वो ना आपने हनुमान जी का भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो जब महावीर, जो भगवान हनुमान है, जो भगवान राम के एक छोटे से सिपाही हैं, अगर उनका नाम लेने से अगर भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, तो यार एवरीडे आप किसका नाम ले रहे हो? कृष्णा, राम, राधा रानी का नाम ले रहे हो, राइट ना? और वो भी मल्टीपल टाइम ले रहे हो, 108 बार एक राउंड में, राइट? इनटू जो भी नंबर ऑफ राउंड्स आप कर रहे हो, राइट ना? So nobody can harm us in that way, right? No need to be worried about that thing, okay? ठीक है, चलो let us end here. क्वेश्चन प्रसाद के टाइम पे लेते हैं ना, आई डोंट वांट टू डिले यू। 10:30 से आपका वो प्लान हुआ है, राइट ना? 12:30 पे हम मिलेंगे दूसरे सेशन के लिए। अभी 10:30 to 12 रखा है आपने इनके लिए, ठीक है? हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। आई थिंक आपका कंक्लूडिंग वाला कर रहे हो आज, है ना, सेशन?